ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے قصور وابڈا آفس میں رورل ایریا کے ملازمین کے ہٹ درمی شریف شہریوں کو رلایا جانے لگا۔ 56 یونٹ کا بل 6500 ڈال دیا گیا۔ قسطیں کروانا بھی شہریوں کو بھاری پڑ گیا۔ 3500 کے بجائے 35,000 روپے قسط بنا دی گئی۔ قصور سے چودھری سلیم سے تفصیلات جانتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں قصور وابڈا آفس کے باہر، جہاں پر وابڈا کی ہٹ درمی رورل ایریا کے جو ہیں وابڈا ملازمین نے قصور کے ایک شہری جو کہ انتہائی شریف ہیں انہوں نے جو ہے تقریباً 56 یونٹس کا جو بل ہے وہ 6500 روپے ان کو جو ہے وہ ڈال دیا۔ وہ وابڈا آفس میں جو ہے اس کو صحیح کروانے آئے، انہوں نے جو ہے وہ 6500 کی بجائے جو ہے اس کو 35,000 روپے کا بل کر دیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک ساتھ کر دیں، میں یہ جو ہے نا 2 ایک ساتھ کے اندر پے کر دوں گا، تو انہوں نے 3500 کی بجائے جو ہے اس کو 35,000 روپے کیا۔ جب وہ شہری جو بینک کے اندر بل پے کرنے کے لیے گیا تو اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے وابڈا آفس کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ آج کل وابڈا کے جو ہے وہ ڈنگ اتنے زیادہ تیز ہو چکے ہیں کہ عام شہری جو ہے اس کو رلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی آپ بتائیں گے۔ آگے سے لوگ ویسے ہی پریشان ہیں، تو اوپر سے ان لوگوں نے نا جو قانون کے لوگ ہیں ان لوگوں نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے۔ میرا ٹوٹل 56 یونٹ سڑے ہیں، انہوں کو میں قسطیں کرانے گیا ہوں تو یہ 3500 میرا بل ہے۔ 3500 بل کے بجائے انہوں نے نیچے 35,000 کر دیا ہے، اور کتنے کے میں چکل ہوں۔ عوام ویسے ہی پریشان، ان لوگوں سے پریشان ہے، حکومت سے پریشان ہے، اوپر سے یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ کبھی چکر جاؤ، کبھی ڈاک خانے میں جاؤ، کبھی بل صحیح کراؤ، کبھی کچھ کراؤ، ہم کام نہیں کرتے، پھر ان لوگوں کے کام کیا کرتے رہتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے اس شہری کی بات سنی ہے، اس کا کہنا ہے ایک ہم اپنا کام کریں، مزدوری کریں، یا یہ جو بل صحیح کروانے کے بعد کبھی وابڈا آفس کے چکر، کبھی بینک کے چکر اور کبھی ڈاک خانے کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ اوکے، اس شہری کا کہنا تھا کہ ہم چکر ہی لگاتے رہیں یا اپنا کوئی کام کاج کریں، بچوں کے لیے مزدوری کمائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ارباب اختیار فوری طور پر نوٹس لیں اور جن غریبوں کو یہاں پر بلا کر ذلیل و خوار کیا جاتا ہے خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ عارف والا تھانہ سٹی کے علاقے میں گھریلو ناچاکی پر خاوند کا اپنی بیوی 14 بچوں کی ماں پر بدترین تشدد، بیوی کی دونوں ٹانگیں توڑ کر 2 دن کمرے میں بند کیے رکھا۔ تھانہ سٹی پولیس کو اطلاع ملنے پر پولیس خاتون کو بازیاب کروا کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مرکزی ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نمائندہ NTN نیوز حاجی عمیر حسن سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عمیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عارف والا تھانہ سٹی کے علاقہ میں گھریلو ناچاکی پر خاوند نے اپنی بیوی پر تشدد کر کے کلہاڑی سے اس کی ٹانگیں توڑ دی۔ یہ افسوسناک واقعہ عارف والا کے علاقہ محلہ ضیاء نگر میں پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم بشیر نے بیوی کو تشدد کے بعد کمرے میں بند کر کے 2 دن حبس جا میں رکھا۔ متاثرہ خاتون کی 20 سال قبل شادی ہوئی تھی اور وہ 14 بچوں کی ماں ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے متاثرہ خاتون سائرہ بی بی کو بازیاب کروایا۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم بشیر کو گرفتار کر لیا۔ FIR خاتون کے بھائی نذیر سکنہ اسلام آباد کی مدعیت میں 3 نامزد اور 5 نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے۔ جی شکریہ عمیر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر بھر میں احترام رمضان آرڈیننس کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے احترام رمضان آرڈیننس پر عمل درآمد کرنے کے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے عبدالرزاق کھوسا سے۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں شہر ڈیرہ غازی خان۔ جیسا کہ ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اور بات کریں رمضان آرڈیننس کے حوالے سے تو ڈیرہ غازی خان میں جس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، جگہ جگہ کھانے پینے کے آئٹم، فوڈ کے آئٹم اور یہاں پہ مشروبات اور ہوٹل کھلے ہیں، جس کے اوپر ضلع انتظامیہ بھی خاموش ہے۔ اسی حوالے سے ایک بزرگ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے ارباب اختیار پنجاب گورنمنٹ بالخصوص CM پنجاب محترمہ مریم نواز کو کیا میسج دینا پسند کریں گے؟ کہ جگہ جگہ اب بھی میں اس کنٹین میں کھڑا ہوں، اسی کنٹین میں جہاں بے روزہ دار مزے سے چائے پی رہے ہیں، یہ فرش بچھا ہوا ہے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا جانے وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردہ عورتیں۔
क्यों बाजारी बैठी हुई हैं? आखिर इस होटल में क्या हो रहा है? पहली बात तो ये, क्या ये फांसी का अड्डा तो नहीं है? मैं मुतालबा करता हूँ कमिश्नर से भी और डीसी साहब से भी कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ हम एहतजाज करेंगे और जुलूस निकालेंगे कि इंतज़ामिया बेरोज़गारों को क्यों आज़ाद छोड़ी हुई है। फौरी तौर पर तमाम बंद किए जाएँ। ये पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों की सहूलियत के लिए 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नवाज भट्टी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। ईद उल फितर के हवाले से लाहौर रेलवे हेड क्वार्टर्स में CEO आमर अली बलोच की हदायत पर स्पेशल ट्रेन इंतजामात के हवाले से कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम DS अफसरान को हदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसमें 5 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी। और आपको बताता चलूँ, पहली ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन भी 26 मार्च को कोयटा से पेशावर के लिए चलेगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को रवाना होगी, जबकि चौथी स्पेशल ट्रेन भी 27 मार्च को ही कराची से रावलपिंडी पर रास्ता फैसलाबाद सरगोदा अपना सफ़र तय करेगी। और 5वीं स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर पर रास्ता फैसलाबाद शेखुपुरा चलेगी। तमाम ट्रेनें अपने शेड्यूल और वक्त के मुताबिक अपना सफ़र तय करेंगी, जो कि जिला इंतजामिया की तहसील समड़ियाल में गैर कानूनी LPG गैस रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इरफान से। जी बताता चलूं, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अनम बाबा ने महकमा सिविल डिफेंस के हमरा समड़ियाल में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा सिविल डिफेंस के हमरा 11 गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी को सील करके 10 दुकानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए, जबकि 2 पेट्रोल मशीनों और 1 गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाली मशीन को बहक सरकार जब्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से LPG गैस की भराई एक खतरनाक और काबिल गिरफ्त जुर्म है। इन्होंने वाजिया किया कि ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इंतजामिया किसी से रियायत नहीं बरतेगी। इन्होंने खबरदार किया कि जो अफराद ऐसे घिनौने कारोबार से वाबस्ता हैं वो फौरी तौर पर ये खतरनाक काम छोड़ दें, वरना इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई शहरियों की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून के इतलाक को यकीनी बनाने के लिए की गई है। इंतजामिया ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो ऐसे गैर कानूनी कामों में मुलव्वस अफराद की इत्तला दें ताकि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTA न्यूज़ समड़ियाल। रुख करेंगे मियां चन्नू का, जहां 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन की तरफ से काम छोड़कर दूसरे रोज भी हड़ताल और एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कमर शहजाद की इस रिपोर्ट में। 3 माह से बगैर तनख्वाहों के काम करने वाले म्यूनिसिपल कमेटी के 500 से ज़ायद मर्दों ख़वातीन मुलाजमीन ने मजबूरन एहतजाज का सहारा ले लिया। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ नहीं मिली। गैस के मीटर उतर चुके हैं, बिजली के मीटर उतर चुके हैं। हकाम बाला से हमारी इल्तिजा है, अपील है। रोजे भी अब बताएं, रोजे कहाँ से रखें? ईद पे बच्चों को क्या चीज़ लेके दें, क्या करें और क्या ना करें, हमें कुछ बताएं। मुजाहिरीन की दुआएं हैं कि जल्द से जल्द तनख्वाहों की अदायगी की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल का कहना है कि ईद से पहले तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश जारी है। था कि ये हमने लेटर्स लिखे हैं और उनके सामने भी हमने तमाम जो हैं अपने ऑफिस उनको रब्ता किया था कि हमें फिल फॉर जो है कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दी जाए ताकि हम इनकी ईद उल फितर से पहले इनको तनख्वाहें दे दें। 2 रोज से जारी काम छोड़ हड़ताल से न सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी का निज़ाम मुतासिर हो रहा है बल्कि शहर के मरकजी इलाकों में गंदा पानी जमा हो चुका है, जिससे शहरी भी शदीद परेशान हैं और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। दूसरी जानिब दीपालपुर एक्सियन लेस्को ऑफिस में डायरेक्टर जनरल विफाकी मोहतसिब इनायतुल्लाह डोला ने खुली कचहरी लगाई, जिसमें दर्जनों शहरियों ने बिजली, सुई गैस, नादरा, स्टेट लाइफ और दीगर महकमों के खिलाफ दरखास्तों के अंबार लगा दिए। देखते हैं मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट।
एक्सियन लेस्को ऑफिस दीपालपुर में डायरेक्टर जनरल वफाकी मोतसिब आला मियां अनैतुल्ला डौला ने अवामुन्नास की वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत के अजाला के लिए खुली कचहरी लगाई। शहरियों की बड़ी तादाद ने वापड़ा, नादरा, स्टेट लाइफ समेत दीगर वफाकी महकमों से मुतल्लक अपनी शिकायत पेश की। वफाकी मोतसिब ने अवाम की दादरसी के अहकामात जारी करते हुए कहा, पिछले 3 माह में उकाड़ा में ये 10वीं खुली कचहरी लगाई गई है। इसमें मैंने पहले दीपालपुर, उकाड़ा और रिनाला खुर्द जो है वहाँ पे खुली कचहरी लगाई हैं, और आज जो ये हम यहाँ आए हैं तो इसमें हमारे पास 120 मुख्तलिफ एजेंसियों के केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें हमने नोटिस दिए हुए थे, और हमें जो रिपोर्ट्स मसूल हुई हैं उसमें 80% जो हैं लोगों के मसाइल हल कर दिए गए हैं, और बाकी जो हैं जिनके मसले हल नहीं हुए उस पर अभी हम हियरिंग कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इसमें से भी ज़्यादातर लोगों का जो है वो मसला यही मौके पे हल कर दिया जाए। कि मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियाँ लगाने का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना है। वफाक के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले किसी भी सरकारी महकमा में अवामुन्नास के साथ नारवा सलूक, गफलत और कुताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। खबर देंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से कंजवानी में जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली हसन साबरी। अक़वाम मुत्तहिदा के तावन से फैसलाबाद के मारूफ मकाम कंजवानी में जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे मकामी आबादी को मियारी और सेहत बख्श पानी दस्तियाब होगा। इस सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में UNO हेड बराए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इदरीस राना, डायरेक्टर कॉलेज लाहौर डिवीजन राना नसीम अख्तर, साबका नून लीगी MNA अली गौहर बलोच और मकामी अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है। मंसूबे से इलाके के लोगों की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बैनुल-अक़वामी सेहत के इदारे की तरफ से लगना चाहिए, तो इन्होंने जो SOP है वो सारे फॉलोअप किए, और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे आने का मकसद पूरा हो गया है कि राना साहब की इस ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है, जिन्होंने अपने गांव के लिए ख्वाहिश की थी कि मेरे पूरे गांव के लोगों को पानी साफ मिलना चाहिए। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आपके सामने इंस्टॉल हो चुका है। मकामी अफराद ने इस मंसूबे पर खुशी का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा समेत राना शहजाद आलम और राना नकाश रमजान की खसूसी काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। ये UNO की तरफ से आया है, और इसमें जो कोशिशें हैं और काविशें हैं वो हमारे भाई राना नसीम अख्तर साहब लाहौर से रिटायर्ड डायरेक्टर एजुकेशन, डॉक्टर राना अदरीस चूँकि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये पाकिस्तान में UNO अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे गांव के लिए आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई अरेंजमेंट करें। ये मंसूबा न सिर्फ सेहत आमा के लिए एक बड़ा इकदाम है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के लिए की जाने वाली काविशों का अमली सबूत भी है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। समाजी कारकुन साजिद शेख ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चों को ईदी और तोहफे दिए। इसी हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदा हमाद रजा की ये रिपोर्ट। दुखी इंसानियत की खिदमत भी इबादत का दर्जा रखती है, जबकि ईद की खुशियों में इजाफा सिर्फ बच्चों की मुस्कान के सबब ही मुमकिन होता है। थैलेसीमिया जैसी लाइलाज मर्ज के शिकार बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अलीपुर से समाजी कारकुन शेख साजिद, जो कि सुबह सवेरे अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता है और शाम के पहर सोशल मीडिया और दोस्तों का सहारा लेते हुए गरीब लाचार वालदैन के बच्चों की खातिर, जो कि थैलेसीमिया जैसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं, खून का अतिया करने और खून के बैग खरीदने के लिए अपील करता रहता है। साजिद शेख गुज़िश्ता 2 साल से अब तक 2500 से ज़ायद खून की बोतलों का अतिया कर चुका है। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसे हर 15 दिन में खून की मुख्तसर मिकदार की ज़रूरत होती है, जो कि ना मिलने पर इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। समाजी कारकुन साजिद शेख ने 65 से ज़ायद थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों को ईदी और तोहफे पेश किए।
जिसमें मेहमान खसूसी DSP अलीपुर फयाजुल हक और आलमी शोहरत याफ्ता मुख्तार माई समेत सैकड़ों सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। साजिद शेख ने बताया, मैंने दोस्तों और शहरियों की मदद से बच्चों की खुशियां बखेरने में कामयाब रहा, जो कि अलीपुर, तहसील जतोई, तहसील लियाकतपुर, अहमदपुर शर्किया, चनीगोट समेत कई इलाकों से बच्चे आए हुए हैं जिन्हें खून का अतिया भी किया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि ये मर्ज ख़ास तौर पर कज़न मैरिज में ज़्यादातर पाया जाता है, जिसके लिए थैलेसीमिया के टेस्ट की अशद ज़रूरत है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अलीपुर डॉक्टर गुलाम पंचन और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 65 बच्चों में ईदी तकसीम और की जा रही है और साथ में गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के बड़ा एक दिल को इत्मीनान आ रहा है कि ये बच्चे आज खुश हैं, ईद आज इनकी आज ही ईद हो रही है। लिहाजा तमाम, जैसे कि आप सबको मालूम है ये लाइलाज मर्ज़ है, इसके लिए जितनी ये शेख साजिद मेहनत कर रहा है, सबसे इल्तमास है कि इनको खून की एहतियात देने में कोई अपना कोताही ना करें और इनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें खून की एहतियात देने में। ये एक बहुत अच्छी काविश है शेख साजिद साहब की कि वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड का इंतज़ाम करते हैं और आज उनको ईदी की तोहफे तोहफ़ दिए जा रहे हैं। तमाम मुखय्यर हजरात से और तमाम लोगों से गुजारिश है, जो मुखय्यर हजरात हैं वो ब्लड बैग दे दें, और बाकी लोग जो हैं वो इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया करें। ये एक लाइलाज मर्ज़ है, ये बड़ी अजियत में मुब्तला। शहरियों ने मुतालबा किया है अगर हुकूमत पंजाब इस मर्ज को फैलने से कबल रोकथाम के इकदाम कर ले तो इस लाइलाज मर्ज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ हम्माद रज़ा। ईद करीब आते ही दीगर शहरों की तरह पीर महल शहर की भी मार्केटों में रश बढ़ने लगा। महंगाई के सताए शहरी और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई देने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नैयर शिराजी से। आज बिल्कुल ईद के करीब आते ही जो है शहरों की रौनकें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं और रात के वक्त भी जो शहरी हैं वो ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का मार्केटों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं पीर महल के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त भी जो है रात गए शहरियों का रश लगा हुआ है, ख़रीदारी पे लगे हुए हैं। हम इस वक्त आपको बाज़ार में ले चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, किधर से आप आ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पीर महल के ही हैं मेरे आशी। अच्छा, आपने यहाँ पर जूते खरीदारी की है? जी, जूता लिए। तो क्या पोजीशन है, आप मार्केट के बारे में क्या कहते हैं? दुकानदार जो रेट है वो ठीक है? नहीं, पिछले साल कुछ कमी थी रेट में, लेकिन इस साल और भी बढ़ोतरी आ गई है। वजह सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस इतने दे रही है कि दुकानदार भी इस बात पे मजबूर हो गया है कि अब रेट ऊपर जा रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि टैक्सेस को कम किया जाए और गरीब आवाम के लिए भी कुछ ख्याल किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने एक खरीदार की बात सुनी है कि वो महंगाई का रोना रो रहा है कि जो चीज़ पिछले साल 1000 रुपये से 1200 में थी, इस वक्त वो 2200 में है। तो महंगाई का रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट खुदारा टैक्सेस की जो भरमार की है वो कम करे ताकि लोगों की जो सकत है वो बढ़ सके। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी भाई बताएं, इस वक्त आदत जो ईद है वो करीब आने को है, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आपके कारोबार के हालात कैसे हैं, कैसी खरीदारी जा रही है, गाहक किस तरह का आ रहा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले से बहुत कम है। पहले रमज़ान से हमारी जो जूतों की शॉप है ना, पहले रमज़ान से स्टार्ट हो जाती थी। अब यकीन करो कि 22 रोज़े हो गए हैं तो कस्टमर बिल्कुल निकल नहीं रहा। बहुत महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से है ना बहुत हम भी परेशान है, गाहक भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है गया। जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले जो खरीदारों की बात सुनी उसके बाद दुकानदार की भी बात सुनी है कि दुकानदार भी परेशान है कि इस वक्त 22 रोज़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर गाहक जो हैं वो उनके नज़र तो आते हैं लेकिन ख़रीदारी की सकत उनमें नहीं है। जिस तरह आपने ग्राहकों की बात सुनी, दुकानदारों की बात सुनी कि गवर्नमेंट की जानिब से जो महंगाई का तूफान बर्पा किया गया है, टैक्सों की भरमार है, हर चीज़ पर जो मटेरियल खरीदते हैं, जो सामान लाते हैं वो रेट बढ़ चुके हैं, जो पिछले साल की इस साल की निस्बत जो है 50% रेट ज़्यादा हो चुके हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि दुकानदारों और शहरियों पर जो टैक्सों की भरमार है उसमें कमी लाएं ताकि लोगों की खरीदारी के लिए सकत बढ़े और दुकानदारों का भी कारोबार जो है वो चल सके और लोगों की जो ज़िंदगी है मुआशात है वो आसान हो सके। ईद उल फितर पर घर में बनाई जाने वाली देसी सवैयाँ ज़ायके में अपना सानी नहीं रखती। रिवायत के जायके और लज्जत के राज हाथ से बनी हुई देसी सवैयों के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद सज्जाद असलम।
ईद उल फितर के मौका पर रिवायती खानों के साथ साथ देसी तरीके से तैयार की जाने वाली सवैयाँ इस त्यौहार का एक लाजमी हिस्सा हैं। देसी तरीके से हाथ से तैयार करदा सवैयों ने न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के दिलों में भी ख़ास मकाम हासिल कर लिया है। ईद की खुशियों में सवैयाँ बनाना एक कदीम रिवाज है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को है। घरेलू ख़वातीन आटे को गूंदकर मकामी ज़बान में बोले जाने वाले लोहे के बने हुए बिल्ले में डालकर हत्ती के ज़रिए घुमाया जाता है। जाली से सवैयाँ निकलने पर उन्हें लंबी पट्टियों में काटकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे सवैयाँ खुरदरी और करारी साख पकड़ती हैं। ये एक मेहनत तलब काम है। माह रमजान के बाद ईद आंदी है तो तवल मेहनत करके अस सेवा बड़े ने भी आप पकावन किते भी चंगा लजीतियां थी हैं वल हर कोई तक घिनते मोल अस उतो कान से घिनते मोल से अस आप मेहनत करे ने ते आप जरा तो बटे ने हैं भी सारे रल मिल के सारे बड़ा वेड़ है साडा जिवें 5-5 डाडा किलो सारे गिद्या तो सारे बटे। माह रमज़ान का महीना है और ईद करीब है, इसलिए हम ये सवैयाँ अपने घर बनाते हैं क्योंकि बाज़ार से सवैयाँ अच्छी नहीं मिलती, इसलिए हम घर बनाकर ये लजीज सवैयाँ खाते हैं। ईद उल फितर की खुशियों में देसी सवैयाँ एक रिवायत के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, जो न सिर्फ मेहमानों के जायके को मुतासिर करती हैं बल्कि एक सकाफती यादगार के तौर पर भी अहमियत रखती हैं। मीठी ईद हो और मीठी ईद पर हाथ से बनी हुई सवैयाँ ना हो तो ईद का मज़ा फीका पड़ जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, NTN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मियांवाली की तहसील पिपला में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों में फ्री कपड़े तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखते हैं मियांवाली से हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट। मियांवाली की तहसील पिपला में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम और बेसहारा बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए 70 बच्चों में कपड़ों के जोड़े तकसीम किए गए। हर साल की तरह इस साल भी अलखिदमत फाउंडेशन पिपला ने गरीब और यतीम बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर यतीम बच्चों के लिए ईद के गिफ्ट तैयार किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 70 के करीब बच्चे हैं जिनको हम ईद गिफ्ट दे रहे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन आज 70 यतीम बच्चों को ईद के कपड़े गिफ्ट कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह इससे पहले तकरीबन 200 घरानों को राशन भी तकसीम कर चुके हैं और आइंदा भी अलखिदमत फाउंडेशन की ये पूरी कोशिश है कि यतीम और बेसहारा और हाजतमंद अफराद को, ख़ानदानों को और बच्चों के साथ मदद और ताउन किया जाए। तकरीब में रहनुमा जमात इस्लामी इंजीनियर अदनान अहमद खान, कारी शेर मोहम्मद साबिर, हाजी मलिक नज़ीर हत्तार और खिदमत फाउंडेशन के कारकुनान ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी यतीम बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए गए। अलखिदमत फाउंडेशन गुज़श्ता कई साल से यतीम बच्चों की खिदमत कर रही है और इस साल हम इन यतीम बच्चों को तकरीबन 70 जोड़े कपड़ों को दे रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी अलखिदमत फाउंडेशन का ऐलान है कि कोई यतीम बच्चा है वो हमें रिपोर्ट करे, हम उसका वजीफ़ा भी लगाएंगे और हर 3 महीने के बाद उसके वालदा के अकाउंट में उसके पैसे आएंगे, बाकायदा उसका नाम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और स्कूल की फ़ीस, किताबों की फ़ीस, कपड़ों की फ़ीस, सर हर चीज़ इंशाल्लाह मुफ्त है। नए कपड़े मिलने के बाद तमाम बच्चों की खुशी दीदनी थी। इस मौके पर बच्चों का कहना था कि दूसरे बच्चों की तरह ईद पर हम भी नए कपड़े पहनकर ईद मनाएंगे। जिन्होंने हमें कपड़े दिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।